Okay, hello students. Now we are going to discuss the next topic of our chapter 2nd of Fundamentals of Human Geography. Chapter name is Population Distribution, Density, Growth. Okay, so our next topic is Factors Influencing the Distribution of Population. ठीक है बच्चों, बुक में जो है ये 3 फैक्टर्स जो हैं बताए गए हैं. एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर. ओके, तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल, सेकेंड इज सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, बट मैंने एक और फैक्टर ऐड किया है जो कि हम लास्ट में बात करेंगे. आप भी ऐड कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि जो बुक में जो है डिस्कस किया गया है. ठीक है, चैप्टर में डिस्कस किया गया है बट नॉट इन अ सेपरेट कैटेगरी. बट हम उसको एक सेपरेट कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं, वो नीचे आएगा. ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में. पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स. ओके, इट इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल. ठीक है बच्चों, लाइफ के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वेन एवर पीपल वॉन्ट टू सेटल डाउन एट समवेयर, एट सम प्लेस, okay, they need to be sure about that there are some water sources available near to that area, क्योंकि water is essential for our life. ठीक है, we need water to drink, we need water to cook food, we need water to take bath, we need water to do agriculture, and we need water to wash our clothes. Okay, so there are various purposes for which we need water. Okay, so wherever there are plenty of water sources are available, or we can say that the plenty of water is available. ठीक है, there is no scarcity of water, so the population will be more in those areas. Simple. Okay, and if there are some areas like desert areas of Rajasthan, desert areas of Sahara desert in Africa, there is a scarcity of water, and because of that the population is very low in those areas. Okay, so this is the simple relationship between the distribution of population and availability of water. ठीक है, if water is available in plenty of amount and in easy manner, then people would like to settle down at those places. Now the landforms. Okay, so broadly we'll talk about 3 kinds of landforms: plain, mountainous and plateau areas. Okay, so plain areas are obviously very easy living because there is not much slope, so you can construct anything. You can construct your houses easily, you can do agriculture very easily, and you can construct roads, you can construct airports, you can construct hospitals, factories, any kind of thing you can construct very easily. There is not much difficulty in constructing those things in plain areas. Now, so this factors will attract more people to live in the plain areas. Okay, on the other hand, the mountainous areas, like the areas in which you people are living, like in J&K, in Kishtwar, so the terrain is very difficult. So, the mountains have very steep slopes, so it's not very easy to construct houses, to construct roads, and there are some danger of disasters like landslides. Okay, so because of these factors, it's very difficult, relatively it's difficult to live in these areas, and that's why people tend to live in less numbers in these areas in comparison to plain areas. Next comes the plateau areas. Okay, plateau is a little higher than plain areas, and a little and lower than the mountainous areas, and their slopes are mild, moderate. Okay, they are like tablelands like this. Okay, so and one of the most important aspect of plateau areas, they are rich in minerals.
so that minerals attract people. So the population is not as much as population lives in plain areas, okay, but there are higher the number of people in plateau areas who are living is higher than in comparison to people who live in mountainous areas, hilly area से थोड़ा लाइफ वहाँ ईजी है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है प्लेटो एरियाज में भी, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेंगे, बट प्लेन एरियाज से जो है कम मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे थोड़ी वाटर की डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि प्लेटो एरियाज में क्या है ना कि जो रॉक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स होते हैं स्पेशली, और ख़ास करके अगर हम इंडियन प्लेटो की बात करें, पेनिनसुलर प्लेटो की बात, तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो रिवर वाटर जो है उसी का सप्लाई होता है, अगर उसमें कम पानी है तो काफ़ी दिक्कत होती है। आप देखते हैं न्यूज़ में सुनते भी होंगे, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला ये लड़ते रहते हैं, काफ़ी डिस्प्यूट होता रहता है कावेरी वाटर पे, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा वाटर की स्कैर्सिटी होती है। उसके बाद और प्लेन एरियाज में क्या है कि ग्राउंड वाटर ईजिली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज़ में क्या ग्राउंड वाटर जो है आप बिल्कुल आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है, क्योंकि वो एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है, प्लेन एरियाज़, उसमें आसानी से जो है आप बोरिंग कर सकते हैं और जो है वो ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज क्लाइमेट। बच्चों देखिए, जहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होगा ना, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। बहुत ही सीवियर क्लाइमेट होगा, है ना, टू हॉट एंड टू कोल्ड, वहाँ पे लोग कम रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि टू हॉट क्लाइमेट, टू कोल्ड क्लाइमेट, क्या होगा वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, ये मिडिल वाला जो क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाएगा रहना। क्योंकि टू हॉट, जैसे सहारा डेजर्ट को ले लीजिए, ठीक है, या फिर इंडिया का एग्जांपल लें तो हम थार मरुस्थल, थार डेजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान ले लें, ठीक है, तो वहाँ पे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है ना। उसके बाद जो है सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं, है ना। तो इन सारे कारणों के कारण जो है टू हॉट एंड टू कोल्ड दोनों में रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट अच्छा होता है लोगों के रहने के लिए, तो इसलिए जो मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब बात आती है सॉइल। ऑब्वियसली बच्चों, सॉइल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। तो बच्चों जहाँ पे भी, अब हमें खाना तो चाहिए ही ना, ठीक है, खाना खाने के लिए हम क्या करें, प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमें फूड मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी सॉइल फर्टाइल है, जैसे कि अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, ठीक है, तो नदर्न प्लेन है ना, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद ये बिहार, यूपी, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छी होती है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक में है इंक्लूडेड मिनरल्स, अर्बनाइजेशन। सपोज करिए कि एक जगह पे मिनरल मिल गया, तब उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसके लिए लेबर चाहिए, ठीक है, उसमें माइन में काम करने वाला चाहिए। माइन में जब वहाँ पे माइनिंग होने लगी तो वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, लोग रहने तो उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको सप्लाई चाहिए, गुड्स चाहिए, तो उनको वो सब प्रोवाइड करने के लिए और लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम झारखंड का एग्जांपल लें, छत्तीसगढ़ का कुछ एरियाज़ का एग्जांपल लें जहाँ पे मिनरल रिच एरियाज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इसी तरीके से डेवलप हुई है। अदरवाइज शुरू में क्या था, वो फॉरेस्टेड एरियाज़ थे, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे मिनरल्स की डिस्कवरी वहाँ पे होती गई, मिलती गई, माइनिंग शुरू हुई, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत हुई और धीरे धीरे लोग वहाँ पे जाने लगे, बसने लगे, और धीरे पॉपुलेशन वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ गई। अर्बनाइजेशन जो कि दोस्त, जो टाउन्स होते हैं ना, सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी होती है, उसके बाद जो है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, कल्चर का सेंटर होता है ना, आर्ट म्यूजिक फेस्टिवल होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और इसकी वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, और इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं विलेजेस से और सिटीज़ में जाके बसते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो सिटीज़ में पॉपुलेशन का बढ़ना ही यही है अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये प्रोसेस। तो
वो किन फैक्टर से होता है वो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टाउन ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव लगते हैं, सिटीज़ मोर अट्रैक्टिव लगते हैं और लोग वहाँ पे चारों तरफ से जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बसते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसको हम और डिस्कस करेंगे बच्चों, अर्बनाइजेशन को माइग्रेशन वाले टॉपिक पे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सपोज करिए बच्चों कि कहीं पे पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, और आपने अचानक से वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगा दी, है ना, इंडस्ट्री में फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, ठीक है, उनके रहने के लिए क्वार्टर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं आपने इंडस्ट्री लगा दी तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग आने लगते हैं, वर्कर्स, फिर उनकी फैमिली, फिर वो सब जब आते हैं तो उनको कुछ प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज चाहिए, वर्कर्स के बच्चे हैं उनको एजुकेशन चाहिए, धीरे धीरे स्कूल्स खुल जाते हैं, हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं, और धीरे धीरे इस तरह के तरीके से क्या होता है, पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से क्या करता है, पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बच्चों, ठीक है। इसमें लैंग्वेज एंड रिलीजन, देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे लैंग्वेज बोलने वाले सेम कहीं बाहर मिल गए, है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहीं जाके उन्हीं के साथ रहें, है ना, एक ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। हमें ज़्यादा एफिनिटी, कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। अगर हमारे सेम रिलीजन के लोग मिल गए, है ना, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, है ना। जो एक फियर होता है बाहर में वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगने लगता है, नहीं चलिए ठीक है ना, एक तरह का कल्चर आपको मिल जाता है, तो एलिनिएशन फील नहीं होता है, आप अलग फील नहीं करते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा लगता है और आप वहीं पे रहना चाहते हो। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, या तो मेरे लैंग्वेज का मिल जाए, या अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजन के बाद एक और ऐड कर सकते हैं, है ना, कि अपना इसमें अगर आप सेम स्टेट के हो तो वहीं पे जाके रुकना चाहते हो, सेम ज़िले के हो तो भी अगर हाँ अच्छा ठीक है ये यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट के, मेरे स्टेट के हैं, तो वहाँ पे वहीं पे रहेंगे, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं इसमें। उसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है बच्चों, ये मैंने ऐड किया है बच्चों, ठीक है। ये फैक्टर इसी में सोशल एंड कल्चरल में ऐड किया हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं यहाँ पर, जो कि ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बच्चों देखिए कि अगर हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं, सपोज करिए हम सीरिया चले गए, ठीक है, तो सीरिया में देखिए क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट और वहाँ पे जो उनके एक उनके कंट्री के ही एक अलग ग्रुप है, उनमें जो है स्ट्रगल चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी वो कंट्री बर्बाद हो गई इस चक्कर में, सिविल वॉर हो गया है, आपस में ही कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, हम क्यों जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, आपने रिफ्यूजी क्राइसिस भी सुना होगा एक दो बार, है ना, वहाँ से लोग भाग रहे हैं वो यूरोप की तरफ, ठीक है, बीच बीच में क्या होता है कि नाव डूब जाती है बोट सुन के, ठीक है, और इसमें काफ़ी लोग जो है लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, ठीक है। तो एक तरह से ह्यूमन ट्रेजेडी ये बन चुकी है ना सीरिया की स्टोरी, बट वो काफ़ी एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सूटेबल मुझे लगा, ठीक है, आपसे शेयर करने के लिए। दूसरा, अगर थोड़ा और हम अपने नज़दीक आ जाए अपनी कंट्री के, तो अफ़गानिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। अफ़गानिस्तान में भी देखिए गवर्नमेंट क्या है, 2000 से, है ना, जब से अमेरिका ने अपना वॉर ऑन टेरर शुरू किया था ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, तब से जो है अमेरिका, अफ़गानिस्तान अभी भी अपने एक बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में नहीं आ पाया है, ठीक है। वहाँ पे एक तालिबान है जो एक कोर, थोड़ा सा क्या कहेंगे, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप है, जो कि स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं, हमें जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो उसको टॉपल करना है, उसको हटा देना है, और अमेरिका के द्वारा यहाँ पे जो वो मानते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पे वो गवर्नमेंट पपेट की तरह रखा है और उसको ख़त्म करना चाहते हैं और कंट्रोल में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है और गवर्नमेंट को वो नहीं देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट को वहाँ पे हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो आए दिन जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं और ये स्ट्रगल अभी भी चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो अभी वो भी अनस्टेबल ही है अफ़गानिस्तान। तो क्या हम वहाँ पे आप जाकर रहना चाहेंगे अभी इस कंडीशन में, जहाँ पे आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी जो है आपकी लाइफ की, है ना, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों सिक्योर नहीं है। तो ऑब्वियसली हम वहाँ जाके नहीं रहना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, और वहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे जब तक कि आपका वो मदरलैंड ना हो, मजबूरी ना हो, ठीक है, कोई और ऑप्शन ना हो। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं,
इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सीरिया से क्यों लोग भाग रहे थे वहाँ पे यूरोप? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे नहीं है। बस यही बात है, उनको लग रहा है यूरोप हम चले आएंगे किसी कंट्री में तो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी है। प्रॉपर्टी तो वो छोड़ के ही आए हैं, ठीक है, अब उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम ज़िंदगी तो बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर्स। तो फैक्टर्स पे ही रहने देते हैं इस वीडियो में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट मेजर्स क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें अगर कुछ आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।